हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो, हॉरर वीडियो जो होने वाली है 5 फेमस इंडियन यूट्यूबर्स हु सॉ रियल घोस्ट वॉल्यूम 4 देखने वाले हैं बाय, तो मैं समझ गया हूँ, हॉरर नाइट्स हिंदी। तो इनकी प्लेलिस्ट चल रही है हमारे चैनल पे, तो देखते हैं ये वीडियो। और इस पे इन्होंने थंबनेल पे लगा भी रखा है कि फेस रिवील, तो देखते हैं इनका खुद का फेस रिवील इसमें होगा। तो देखते हैं वीडियो, रिएक्शन देते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और शॉर्ट्स का चैनल अलग बना दिया, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और गेमिंग का चैनल एक अलग है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम पे जाकर मस्ट फॉलो कर लेना, क्योंकि उस पर रील्स बहुत अच्छी आ रही है। तो चलते हैं वीडियो की आप तरफ। सभी का ओके, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ठीक है। अगर आपने थंबनेल और टाइटल में फेस रिवील के बारे में देखा है हाँ, सो डोंट वरी, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं आगे इस वीडियो में अपना फेस रिवील करने वाला हूँ। हमारे पिछले वीडियो में आप सब ने लाइक एम को कंप्लीट कर दिया और अभी अच्छा। उस पर 3500 प्लस लाइक्स कर दिए। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ 5 फेमस इंडियन यूट्यूबर्स हाँ, who saw real ghosts. So get ready for some real dark horror content. ओहो, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा कंडीशन जब आपकी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड होती है while you are sleeping. The only part that are working is your brain and your eyes. तो ऐसे कंडीशन में कुछ देखने और कुछ सोचने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ हो रहा था बियर बाइसेप्स के साथ। Pierre Biceps, a YouTuber with over 3 million subscribers, shared a video in his channel that says, My Real Life Ghost Story. इस वीडियो में he talks about a very dark phase in his life when he was 11. उस टाइम पे he says that he was having a lot of sleep paralysis in night. लेकिन इनके केस में वो sleep paralysis नॉर्मल नहीं था। जो sleep paralysis वो एक्सपीरियंस कर रहे थे was something more different and more creepy from others. So while I did have a lot of sleep paralysis experiences, this one is the story of the scariest sleep paralysis experience. My sleep paralysis would often include me waking up in my own room. I'd open my eyes and I'd see a shadowy figure in my room. Because I was in that sleep paralysis mode, I wouldn't be able to scream or react. So the best defense mechanism was just closing my eyes and hoping that sleep meets me again. एक रात ऐसे ही उनके साथ फिर से हुआ। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग स्लीप पैरालिसिस अगेन, पर तब उनके साथ जो चीज़ होती है ये आपके होश उड़ा देगी। आप खुद सुन लीजिए कि आखिर उस रात उनके साथ क्या हुआ। This one time when I was sleeping next to my mum, I remember I started feeling something deeper than sleep paralysis. I felt like these little shadowy creatures, this shadowy power was kind of chaining me down to the bed. It gradually chained me up entirely. And I knew something was wrong. I remember those shadowy creatures screaming out something. I don't remember what they said, but it was like they were welcoming some kind of a lady, some kind of a queen. I'm getting goosebumps as I say this. I suddenly saw this woman sitting on top of me. Pale skin, patchy skin, it was torn up. It had a few blisters, untidy hair. And I could only see one of her eyes because her hair was covering the other eye. And with that pale red eye, she was staring down at me while she was sitting on top of me. I couldn't even move my neck because I was paralyzed. So I moved my eyes and I saw my mum sleeping next to me. I tried screaming her name, but I was paralyzed and I couldn't say anything. All this while she's sitting on top of me. I could feel her weight on the top of my chest. And it wasn't comfortable. I felt her fingers on my body. And it was one of the creepiest things I'd ever been through. I was just 11 years old. ये सुन के मैक्सिमम लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि ये कोई सपना या फिर कोई नाइटमेयर हो सकता है। पर आगे की कहानी सुन के आप लोग समझ जाएंगे कि वो एक्चुअल में क्या था। इस कहानी को 2 साल बीत जाते हैं। One day, Pierre Biceps was sitting and watching a television show. वहाँ पे उस टीवी शो में they were showing something about a Japanese phenomena.
वो बोल रहे थे कि किस तरह के जापान के लोगों ने अपने स्लीप पैरालिसिस के टाइम पे अपने चेस्ट के ऊपर एक विच या फिर एक चुड़ैल को बैठते हुए महसूस किया है। ये कहानी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा बियर बाइसेप्स ने अपने साथ 2 साल पहले एक्सपीरियंस किया था। पर सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस दिन उस टीवी शो में जिस चुड़ैल को दिखा रहे थे, एग्जैक्टली वही सेम चुड़ैल बियर बाइसेप्स ने 2 साल पहले अपने चेस्ट के ऊपर बैठे हुए देखा था। 2 years later, I was watching National Geographic, I believe, a show about alien abductions. And you know how in those shows they create a reenactment of real life events? They created a reenactment of a Japanese phenomenon. I forgot what it's called, but even in Japanese culture, this kind of a phenomenon exists where sleep paralysis is accompanied by a witch sitting on top of you. Now, in that show, when they were trying to create a visual representation of this phenomenon, what they showed in that show was exactly what I saw. It felt like it was almost the same woman, इसी की the same स्टोरी सुन single दोनों eye ने अपने staring बना लिया। down, the same hair on one side, the same burnt up skin, untidy clothes, those pale dead eyes. Not staring at you angrily, just staring at you with the eyes of death, with nothingness. वहाँ पे थोड़ा बहुत और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है। इन सब के बाद बियर बाइसेप्स एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज नेगेटिव एंटिटीज़। और अभी उनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और उनकी कहानी में बस इतना ही था। नंबर 4, करण सिंह मैजिक, ए मैजिशियन ऑन यूट्यूब विद ओवर 400K सब्सक्राइबर्स। उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है दैट सेज माई गोवास हॉरर स्टोरी। वो अपनी लाइव स्ट्रीम में समय रैना और उनके बाकी दोस्तों के साथ अपने रियल लाइफ हॉरर स्टोरी को शेयर करते हैं। इन दिस स्टोरी उनकी फैमिली उनके गोवा के रिलेटिव के घर गई थी। एट दैट टाइम ही वॉज 6 years ओल्ड। उनके रिलेटिव्स के घर में ही हैड ए कज़न ब्रदर नेम्ड जैकब। जैकब वॉज नॉट नॉर्मल। वो 25 साल का था और उसका ब्रेन 6-7 साल के बच्चे जैसा था। इट मीन्स कि जब जैकब 6-7 साल का था उसके बाद से उसका ब्रेन डेवलप करना बंद हो गया। वन डे उनके सारे फैमिली मेम्बर्स घूमने गए थे। घर में जैकब और करण सिंह अकेले थे। तभी आगे ऐसा कुछ होता है जो सबके होश उड़ा देगी। गए, सब चले गए टू वॉच टू शॉप और टू गो टू अ बीच और समथिंग, और मैं रोनी के साथ वहाँ पे जेकब के साथ वहाँ बैठा हुआ हूँ। एंड जेकब सेज कि मेरे को टॉम एंड जेरी देखने हैं। 25-year-old बॉय सेज मेरे को टॉम एंड जेरी देखना है। मैं 6-7 साल का बच्चा बोला हाँ टॉम एंड जेरी। और उस टाइम पे ना वो VCR होता था। दिस इज अराउंड द टाइम यू वर बोर्न समय। एक VCR टेप होता था विच यू कैन इंसर्ट एंड दैट स्टार्ट्स प्लेइंग इट। सो ही गेट्स अप, he picks up that VCR tape and he's about to put it in the television, and the television में थोड़ा static सा आता है, जरा सा, there's a little bit of static that comes. He's going to put it and then he doesn't put it and he just sits like this with his hand pointing towards the power button of the VCR, थोड़ा slouch होके ऐसे, he's just sitting there. And I said, Jacob? And I hear and I said, Jacob? And again I hear a little bit of I said, Jacob, what's happening? And then he sort of looks at me, goes like, nothing. And then he looks again at the TV, and his eyes, I can feel his eyes rolling up, and I hear, Roddy, you bastard! And he starts running towards me, and I go out to the room, and I shut the door and I lock the door, and he starts banging on the door again and again and again. He said, open the door! Open the door! Ronnie, open the door! But he didn't, and I obviously didn't, and I was shitting my pants. And I'm sitting in the bathroom waiting for them to come. And then after a short time, I hear the car roll, and I hear my parents come back, and I run out saying, there's something wrong with Jacob, there's something wrong with Jacob. And Now this was something actually paranormal and creepy. तो अभी हम इस वीडियो में आगे बढ़ फेस रिवील। वेलकम टू फेस रिवील।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस रिवील। तो अभी हम इस Okay. वीडियो में आगे बढ़ते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल नहीं होती और जिनके पीछे कुछ अननोन एंटिटीज़ का हाथ होता है। हमारे साथ कभी कभार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो वैसे तो देखने पर काफ़ी छोटी चीज़ें होती हैं, पर साथ ही साथ अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो काफ़ी अजीब भी होती हैं। आमतौर पर हम ऐसे इंसिडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, बट हु नोज़ कि अगर ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी या फिर ये एक्टिविटीज़ पैरानॉर्मल थी। इफ़ यू रिमेंबर इन वन ऑफ आवर पास्ट वीडियोस जिसमें कैरी मिनाटी ने अपने हॉरर स्टोरी को शेयर करते वक्त कुछ ऐसा कहा था। वो लिटरली यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ आ गया। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो, सब लोगों को यही लगता है, ज़्यादातर यही होता है कि वहम है लोगों का, बट यू नेवर नो, हो सकता है मैंने यही रखा हो क्लास। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं तुम्हें इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ। सो लेट मी टेल यू, आगे मैं जिन 2 यूट्यूबर्स की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ उनके साथ भी ऐसा ही कुछ छोटे इंसिडेंट्स हुए थे। नंबर 3 पर है द रॉनी शो। वो एक बार अपने रूम में ऐसे ही बैठ के अपने वीडियो की शूट कर रहे थे। वो अपना शूट स्टार्ट कर रहे थे और तभी उनके रूम में कुछ ऐसा होता है। आज हम लोग हमारे जमानों पुरानी चलती प्रथा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वो अपने आप खुला। भूत भाई घर में। नेक्स्ट नंबर 2 पर है मोस्टली सीन। उनके साथ भी ऐसा ही एक बहुत ही छोटा सा और इग्नोरेबल इंसिडेंट होता है which she shared in one of her Q&A videos. Any paranormal experience? I wouldn't call it paranormal, but there was this one time when I was lying in bed doing nothing, and I don't know if I fell asleep, if I was like half asleep, or I was just imagining, but I felt like someone just did this to me, and then I woke up and there was no one in the room. It could have just been like, क्या कहते हैं उसको, भास. So I don't know if it was a paranormal experience, but I didn't get scared though. इन दोनों यूट्यूबर्स के साथ ऐसे ही 2 छोटे इवेंट्स हुए। बिल्कुल हमारी तरह उन्होंने भी इस छोटी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया और इग्नोर कर दिया, बट जैसे कि कैरी ने कहा था, हु नोस ये एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स नॉर्मल थे या पैरानॉर्मल। नंबर 1 इन दिस लिस्ट इज ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान की हमने पहले भी कुछ स्टोरीज कवर करी हैं, बट दिस वन इज़ द मोस्ट स्कैरियस्ट वन। ट्रिगर्ड इंसान अपने स्कूल टाइम की एक सबसे डरावनी स्टोरी शेयर करते हैं इन ए वीडियो स्कूल की वो रात। ही सेड दिस स्टोरी अबाउट हिज स्कूल्स हॉन्टेड एक्टिविटी रूम। ये टाइम थी ईयर एंड की, जब स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा था। शाम का टाइम था और सारे बच्चे फंक्शन में बिजी थे, पर ट्रिगर्ड इंसान और उनके एक दोस्त देवेश अपने क्लासरूम में चिल कर रहे थे। तभी उन्हें उनके हॉन्टेड एक्टिविटी रूम के किस्से याद आए एंड द थॉट ऑफ गोइंग नियर द एक्टिविटी रूम, और ये शायद उनके पूरे स्कूल टाइम की सबसे गलत डिसीजन थी। तो बात करते करते में देवेश स्पूकी सी बातें करने लगा। हम एक्चुअली स्कूल के एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसके बारे में पूरे स्कूल में रूमर्स थे कि वो हॉन्टेड है। मैं और देवेश अपनी मस्ती में एक्टिविटी रूम वाले कॉरिडोर में चले गए और भूत वगैरह की आवाज़ें निकालने लगे। देवेश एक्टिविटी रूम की तरफ पीट करके खड़ा था, जब मुझे लगा जैसे उस एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया है। मैंने देवेश को ये बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग गया। तभी मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई फ्लैश की तरह निकला। मैंने और देवेश ने जितनी देर में नज़र घुमाई उतनी देर में कोई एक्टिविटी रूम के अंदर घुस रहा था। अब हमें उसकी शक्ल तो नहीं दिखी, पर वो जो भी था बहुत पेल सा था, एकदम शैडोई सा। फिर उन्होंने सोचा कि वो उस एक्टिविटी रूम के दूसरे साइड वाले रूम में जाएंगे और वहाँ से विंडो के थ्रू देखेंगे कि आखिर एक्टिविटी रूम के अंदर क्या है और वहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी उन्होंने वहाँ से कुछ ऐसा देखा। मैं और देवेश उस क्लास में गए और उसकी खिड़की से एक्टिविटी रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अब इस पॉइंट पे ना बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और अंधेरा सा भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से बिजली कड़की और मेरी तो भाई दिल ऐसा ना दिल दहल गया मेरा। रूम में पंखे से एक बच्चा लटका हुआ था। उसकी ऐसे आंखें बाहर आ रखी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं लिटरली इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा। और इसके बाद वो अपने टीचर को बुलाते हैं और उस एक्टिविटी रूम के चाबी को खोल कर वहाँ पे चेक करते हैं, बट वहाँ पे कोई नहीं होता। बट बिलीव मी, एक स्टूडेंट के बॉडी को वैसे हैंग होते हुए देखना इज़ रियली डार्क एंड स्कैरी। ओके
ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना और सेकंड चैनल है शॉर्ट्स का, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। गेमिंग का चैनल एक अलग है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक पीस एंड लव एंड बाय बाय।